السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ایک طویل عرصے بعد ہم آج آپ کی ملاقات کروائیں گے خبردار کے فلم رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے ساتھ. جی جناب. ہائے کی لکھ بیٹھا بڑی دیر بعد یہ کی لکھ بیٹھا آیا. سر 2-3 دن ہوئے میں نے ملک جائے نو. کہاں گئے ہوئے تھے؟ آسکر ایوارڈ سی نا جی، انہوں نے تقریب چ بلایا سی میں. کیا کرنے؟ وہ ساری تقریب انہاں دے اوتے ہوئی ہے جی. سارے نو کی پتا جاہل آدمی ہے. میں یقین کرو اتنی پذیرائی ہوئی ہوتے میری سر، بالکل اتنا فرق رہ گیا. کس چیز میں؟ آسکر میں نے مل رہا سی نا. پھر کیا ہوا؟ اے شرمین چنائے پتہ نہیں کتھوں وچ آ گئی. یار حد ہوگی. ادھر سید نور صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا تھیم چرایا ہے انہوں نے، میری بنی ہوئی فلم جو ہے بلکہ نام تک چرا لیا. وہ سارا دا نام چرایا. میرے تے بیگ جو فلم کر رہی ہے میں بنائی سی. ہاں جی، فلم بھی کٹی اور 2 پروٹے بھی. سر ایکچولی انہاں دے سکرپٹ بیگ چ نا سکرپٹ تو علاوہ اور بڑیاں چیزاں ہوندیاں نے. کیا ہوتا مثلا؟ پراٹھے ہوندے نے، ران روسٹ ہوندی ہے، ہدوانا ہوندا ہے، کڑائی ہوندی ہے اور بنانے والا بندہ بھی پیچھے ہوندا ہے. بات ہے جی. یہ کون صاحب ہے؟ کون جی؟ یہ اکھاں بنوان آئے نے. میں آیا یوکے تو فلم بنوان لئی. ہاں جی، انہاں دا بڑا نام سنیا میں جی نوی فلم شروع کر رہا ہوں. یہ تھا شاہد افریدی. کیا؟ یہ تھا شاہد افریدی. وہ تو تھا میں ہوں شاہد افریدی. سر ادو وہ سی ہن میں بنا رہا. یہ تھا شاہد افریدی اور میرا ٹائٹل او بیٹھا جی. اور یہ اس طرح کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ انڈا دین لگا جی. نہیں اس کو کوئی ڈھنگ کی سیٹ تو. نہ یہ سارا کچھ ایتھے ہی کرے گا. ایتھے کمرشلاں کرے گا. ہن بھی کمرشل کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ پولٹری فارم دی. پولٹری فارم کا کیا مطلب؟ ہاں ہے، پولٹری فارم چ آنڈے ہوندے نے، اور کی ہوندا ہے یار. اور اینو اسی کہیا تو شتر مرغ دا دینا ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا نا آپ کا آفس ہے. یہ جی جی. یہ پروڈیوسر آئے آپ کے ساتھ. جی جی. وہ آپ کا اسسٹنٹ ہے، وہ بیہودہ سا لڑکا جو کھڑا. جی جی. سارے رائٹر ڈائریکٹر ہے. میں تمہاری بات کر رہا ہوں. نہیں بہت الگ ہو رہا ہے نا. اور یہ ہے کیریکٹر. جی یہ ہے پروڈیوسر. جی جناب. تو یہ ساتھ کون بیٹھی ہیں؟ ہائے تسی پہچانی نہیں؟ نہیں. حضور ببلی ہے. یہ تو پروڈیوسر گھیر کے لے آئی ہے. آج آدمی تو تسی سارے نو یہی گھیر کے لے آئی ہے. دیکھ رہے جی. جی جی دیکھ. ہیروئن دیکھ رہے ہو؟ سر اچھا ہے ہیروئن اس فلم دی. اچھا ببلی ہیرو نے. جناب علی. اے او ببلی جی دے تو چھاپا پیا سی. ارے افریدی ہلنا نہیں. اللہ نے دیکھ کے ٹوٹ جائے گا. جے پونڈا ڈیم جو ہے نا اینی اری آؤٹ ہے، دے آنڈے بند ہو گئے نے. اچھا جی، شاہد افریدی سے آپ کو انتقام لینا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر تانوں اس گل دا پتہ ہے کہ پچھلے دن شاہد افریدی ایک صحافی نے لڑیا. ہاں جی لڑا. اے انہاں دے ابو جی نے. یہ میں یہاں ہو رہا ہے، ہو سکتا ابو. ہلو بھائی نے ادھر میرے نال رہنا ہے ببلی. مستقبل دی ٹاپ کلاس ہیروئن دیکھ رہے تسی. تو ذرا حسن دیکھو دا. نصیبہ نہیں ہے ہیرو ہی تو دیکھو نا. یہ میرا ہیرو ہے. ہاں یہ آپ کے ساتھ یہ یہ ہے. تہاڈا ہیرو ہے. خوش قسمت. نصیب کھل کے تہاڈے. آپ میرا نصیب بند رہنے دیں، میں نے اس کے ساتھ ہیروئن نہیں آنا. او دیکھو بی بی یہ آئے رزق نو نہیں ٹکرائی دا ہوندا. اچھا جی، اس فلم کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اے تھوڑے سامنے باندری بیٹھی ہے. نہیں چلو یہ تو ہو گیا نا، ایک آدمی آپ کر رہے ہیں نا. اس کا جنرلی کیا موضوع ہے؟ سر سکرپٹ میرا ہے، میرے کو پوچھو کہ میں کی کرنا چاہنا ہے. ہاں جی کیا کرنا ہے؟ یہ میں کرپشن جڑی ہے انہوں ایکسپوز کراں گا. کرپشن جی. کرکٹ میں؟ صرف کرکٹ نہیں جناب علی، پورے سپورٹس وچ جتھے جتھے جڑی جگہ تے کرپشن ہو رہی ہے ہاں جی میں ایکسپوز کر دیں گا. ہاکی کے بارے میں مجھے یاد آیا ہے، نیب میں درخواست دی گئی ہے کہ ذرا تحقیقات کریں. اور تو اور پنجاب سپورٹس بورڈ کے فنڈز تھے 10 ارب روپے، ان میں ٹھیک ٹھاک گھپلوں کی توقع ہے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ نیب کا اس طرف دھیان نہیں گیا تو یہ خیال خام ہے. نیب اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے. سارے میں سارا کچھ تسی دس دیو، میں ایتھے کو ٹاکی شکی مار دینا. ویسے کام اچھا چھڈنا نا. ہیرو دیکھ رہے ہو تم؟ یقین کرو تہاڈے نصیب کھل. تمہارے بیٹے کی چونکہ اس نے انسلٹ کی تھی، تم بدلہ لے رہے ہو اس سے. اور سر تسی فضول آدمی کے پیچھے جا رہے ہو. ان جگت کیتی سی بدلہ کیوں لینا؟ یعنی تمہارے بیٹے کے ساتھ اس نے کوئی سر کوئی ایسی گل نہیں کی. سر میں کہا ہاں ان میرڈ ہے فی الحال. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انمیرڈ ہوں. جی ہاں جی. جی، یہ انفٹ ہے سر. یار اس بیچارے کو کرسی کو اور دے دو، مجھے جھلاوٹ ہو رہی ہے. نہیں سر نہیں یہ سنے رہے گا تو نہیں پتا ساری فلم چینج ہے. سر سب تو آرام دہ کرسی ہے دے لئی. یہ شہریار صاحب نے سپیشلی یہ واسطے منگائی ہے. تم نے پہلے کس کس مووی میں کام کیا ہے؟ انہیں گھر بھی کام کیتا ہے. ہاں جی ورک شاپ بھی کام کیتا ہے. یہ جب پیدا ہوا نا جی دائی نے تو اتنے لکھ دیتا سی فکسڈ. فکسڈ. ہاں جی. اچھا باقی شہریار خان بہت مہربان ہے اس پہ. یعنی کرس گیل نے بدتمیزی کی خاتون صحافی کے ساتھ $5000 جرمانہ پے کیا.
पाकिस्तानी सहाफी के साथ अफरीदी ने बदतमीजी की, शहरियार साहब माफी मांगने आ गए। कोई बात है भला, उसे जुर्माना करे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। क्यों, उन्हें क्यों इस तरह बिठाना है? ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਬਹਿ ਹੀ ਇੰਜ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 12 ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਣਾਣੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੂਕੇ ਬਣਨੀ ਫਿਲਮ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ। ਕੋਈ ਸੀਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਸੀਨ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੈ, ਦੱਸ ਨਾ ਯਾਰ कौन सा सीन? ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੀ, पहलियां यानी खेतों वाला। ਖੇਤੋਂ ਵਾਲਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਨ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੀਰੋ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆਇਆ, ਹੀਰੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਧਰੋਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੀਰੋ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ टाइटल थल्ले चलेंगे। सर डायरेक्टर साहब तो नॉन सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इंडिया बहुत में। अच्छा सब्जेक्ट, बहुत आला सब्जेक्ट है। और सर इंडिया में बड़ी अच्छी फिल्म बनी है हॉकी के ऊपर। चक दे जी, बड़ी बिल्कुल। लाजवाब फिल्म बनी थी, और शाहरुख खान की। और सर कहा जाता है कि इंडिया में हॉकी को रिवाइव करने में उस फिल्म ने बड़ा किरदार अदा किया है। मैं तो समझता हूं हमारे यहाँ हर चीज को रिवाइव करने के लिए एक फिल्म चाहिए। सबसे पहले तो हुक्मरानी को रिवाइव किया जाए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैनेजमेंट को रिवाइव किया जाए। मिस मैनेजमेंट की इंतहा है कि हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस जो हैं, आप जानते हैं वो क्या कर रही हैं? क्या सर? हर तीसरे चौथे महीने एक शिकायत सुनने को मिलती है कि फला मुल्क गए थे, स्पेन गए, जर्मनी गए, बर्तानिया गए, वहां 2-3 प्लेयर स्लिप हो जाते हैं। अब स्लिप हो जाना ये कोई आसान काम नहीं है, करोड़ों रुपयों की गेम है, और बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्समैन का भेस बदल के यहां से बाहर जाते हैं, वहां स्लिप हो जाते हैं, कोई पूछने वाला, जुर्माना अदा कर दिया जाता है। जुर्माना कौन अदा करता है? सरकार अदा करती है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਲਿਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਲਿਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਬਬਲੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਨ ओपन होएगा। तो डायरेक्टर बेहोश हो जाएगा। और तुम फजूल बातें करते चले जा रहे हो, ये कोई मौजूद है तुम्हारा? सारे मौजूद नहीं है। नहीं, तुम असल बात की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा, करप्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे हो, एक शायद अफरीदी के पीछे पड़े हुए हो। तुम करते क्या हो? सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਬੈਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। किसको? डायरेक्टर को? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟੀਵੀ तुम्हारी ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦੇ ਇਧਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, वो इशारा आपकी तरफ कर रहा है। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ। वैसे देखे डायरेक्टर साहब, अगर ये इसी तरह बैठा रहा पूरी मूवी में तो ये तो नजर ही नहीं आएगा मैं इसका काम नहीं कर रही। ਆਏ ਲੋ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਟਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। अच्छा भी बड़ा टैलेंटेड है, खलो के भी अंडा दे देता है। बबली देख रही है हीरो की हाइट चेक कर, हाइट। चले ठीक है, आप मुझे पहला सीन तो बताएं। ना जी सीन ये है कि कैमरा ओपन हुआ, आप अंदर आई हैं, आपने आके कहा मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रह सकती, तुमने आखिर मुझे दिया है क्या? तो हीरो ने अंडा देता। यानी कि फिल्म शुरू नहीं हुई तो प्रॉफिट आना शुरू हो गया। एक मशवरा मेरा जी फिल्म का टाइटल चेंज कर। एक टाइटल की है, मैं था शाहिद अफरीदी, ये लगेगा कि हुमायूं सईद दा चरबा। आहा, तो की ना रखिए था? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਗਰਮ ਆਂਡੇ। ਹਾਏ 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 क्या बात है, और फिल्म नालों बहुत प्रॉफिट आंडिया का होना है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ टिकटा दी ਨਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ। उस चक्कर च असं बड़ा अंडा भी भेजते एक ही शुतरमुर्ग का अंडा है। नहीं, ये गैंडे का है। Continuous Raat will take a break, stay with us. Welcome back. Continuous Raat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया जी। और आज हम आगाज करेंगे एक फार्मूले के साथ। लो जी, फार्मूला फिर बीच आ गया।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ तौबा कर ली सर? किसने कहा था तौबा कर लो? इसने सर। नहीं, मैंने ये कहा था कि फार्मूला हर दफा नहीं हुआ करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इंतहाई इख्तिसार के साथ। अच्छा, जो अल्फाज मुकाबला और मुसाफा के वजन पर होते हैं, उनमें याद रखने की बात है कि फरीकैन इन्वॉल्व है, एक से ज्यादा यानी दो लोग इन्वॉल्व है। मसलन सफा का मतलब है हथेली, मुसाफा दो लोग जब हथेलियां जोड़ते हैं उसको मुसाफा कहते हैं। मुशायरा दो लोग जब एक दूसरे को शेर सुनाते हैं तो मुशायरा कहलाता है। सर उत्थे तो शायरां दा ढेर लग्या हुंदा है। मुशायरे में वो इसलिए कि फिर एक्सपैंड हो जाते हैं ना मानी। ओरिजिन इनका यही है, मुबाहला, मुआनिका, मुनाजरा, वाह वाह। यानी नजर मुनाजरा कभी नहीं सुना? जी बिल्कुल। अब नजर का मतलब है एक बंदा जब किसी दूसरे को देखता है तो वो नजर है। मुनाजरा जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आई बॉल टू आई बॉल, इसको मुनाजरा कहते हैं। जैसे अहद है, अहद जी। अब अहद एक आदमी है जो अपने आप के साथ अहद कर रहा है, वादा। लेकिन जब इसको आप मुआहदा कहेंगे तो फिर लाजमी है कि दो लोग, यानी कि बंदे जरूर इकट्ठे कर लेने। अच्छा जी, अब आए असल अल्फाज की तरफ। वो चला गया। आज फार्मूला इतना सही था। देखें किस तरह चेहरे खिल उठे हैं पूरी ऑडियंस के। हमारे चेहरे नहीं देखे नहीं, आपके चेहरे तो मुरझा जाते हैं। वो आड़ू ग्रेनेड जो है वो बाकायदा बेहोश होने वाला है। और यंगस्टर्स को देखो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखो किस तरह खिल उठे हैं। वो बेहोश फिरंगी आसफिया की वजह से नहीं, भूख की वजह से हो रहा है। अच्छा जनाब, एक मुहावरा है, घोड़े बेचकर सोना। बिल्कुल। कभी नहीं सुना? सुनिया, मैनू सुनिया, मैं किस तरह कमा, मैं सुनिया। इसने घोड़े नहीं, इसने हमेशा संडे बेचे हैं। अच्छा, ये सरासर गलत है। घोड़े बेचने का अमल हुआ ही नहीं। हाँ। और ये महज बदनामी है कि घोड़े बेचकर सोना। यानी क्या बेतुकी बात है, जिस बंदे ने घोड़े बेचे हो जाहिर है उसके पास मालो ज़र होगा, काफी लंबी चौड़ी रकम होगी, और वो बेफिक्र होकर लंबी तान के सो गया। पैसे उसने क्या अपने सराहने रख लिए थे? असी किसे जौकी थे साले हैं सर। सर उसूलन तो उसे नींद ही नहीं आनी चाहिए। उसूलन उसे वाकई नींद नहीं आनी चाहिए। ये होएगा घोड़े बेच के जागना। नहीं, घोड़े बेच के भागना। ये है बंगाली लफ्ज घोड़े बीच के सोना। घोड़े बीच के सोना, और बीच का मतलब है बांध के, अच्छी तरह कस के बांध के, बेफिक्र होके। ते सानू बांध तुसी पहले ही दस दो सर। सर बंगाली ने उन्होंने घोड़े ना की तलग, वो तो कहन मछली बीच के सोना, यानी चावल बीच के सोना। हाँ जी। तुम बंगालियों को जानते ही नहीं। ये बंगाल और बिहार की बड़ी खौफनाक ट्रेडिशन है। बहुत बड़े जंगजू थे, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कहां से आया था? सर खुदा दा वास्ता ना बंगाल चो ना ले आना। बिहारी था, बिहार से था। सर चंद्रगुप्त मौर्य बादशाह सी? यार और क्या यार, तेन 50,000 दफा ते गल दसी कि बादशाह सी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो तेरा फुफड़ सी। और बात सुनो, फिगरेटिवली ये बात की जा सकती है। वो तो आप सराइकी बेल्ट के है ना? सर मैंने नहीं पता, मैं हुण पता नहीं मैनू की होने लगा। नहीं, कुछ नहीं होने लगा। उसकी बीवी पिपला से थी। सर मैनू कसम चुका लो, मैनू नहीं पता पिपला किथे है। और यार मियां वाली की बड़ी आम तहसील है। हजूर मैं माइग्रेट करके मुल्तान गया, मेरी जम्मन भूमि ए है लाहौर। हाँ जी, ये नान वाला नहीं जिथे पैदा। बहरहाल आप सराइकी और मुल्तानी बोलते बहुत खूबसूरत है। सर इन्ना अरसा उत्ते रह रहे थे, बोलनी नहीं फिर? सर ये बोली इन्हें सीखनी नहीं सी, इन्हें टेंशन पैगी मैं रोटी किवें मंगांगा। और ये बोली इन्हें सीखी भी फकीर को है। तुसी मैनू किस कदर घटिया पेंट कर रहे हो। मैं कर रहा हूं। ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फजूल शख्स करता है। चुनांचे ये है घोड़े बीच के सोना। अब समझ आ गई बंगालियों का घोड़ों के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है सर मैच ते ਅਸੀਂ हार गए हैं, फाइनल च उन्होंने कट दिता। हुण वो चाहे बीच के सौण, चाहे बेच के सौण, खरीद के सौण, सानू क्या शर्म की बात है कि बांग्लादेश तुम्हें किक आउट कर रहा है। ऐसे ही होना, जिस माशरे में करप्शन होगी यही कुछ होगा। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज तखल्लुस। तखल्लुस बड़ा ही मजे का लफ्ज है। निक नेम सर।
ये भी अगों के से बादशाह जाएगा, उसका तखल्लुस ये था। तखल्लुस का ताल्लुक किससे होता है? मोस्टली किसका तखल्लुस होता है? शायर का। और इसकी एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये अब प्रिजम्पशन ये है मौलफ की कि कोई अरब लोग जब बैठते थे, मुशायरे होते, तो जब कोई बोर कर रहा होता तो उसे कहते खलास खलास खलास, यानी फारिग करो, जान छोड़ो। तो जिस शेर में उसका नाम आता था ना, वो आखिरी यानी मक्ता होता था। वाह। चुनाचे खलास से फिर ये तखल्लुस बन गया। यानी तखल्लुस वो है जिससे गुलू खलासी होती है, जिससे जान छूटती है। तो सानू जफर साहब को मार पवाने तो सर एडे तकल्लुफ च पैण दी की लोड़? सीधी तरह बंदा नु कह के भाई अपना काम कर जाके। नहीं यार नहीं, ये बड़े पुरतकल्लुफ लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग। ये कॉमेडियंस थोड़ी होते हैं। अच्छा कॉमेडियन लोग तुसी कह सकते भी चाह अपना काम कर, मैंने को कह के दिखावे, मैं उन्हें पूछा सर कॉमेडियन ने भी तानू तखल्लुस कहना पैना। इसका बड़ा तुम्हें गुस्सा चढ़ा है। अरे इस बात कि मैं आप शायर हैं और ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਖੱਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा जनाब, एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज पैदल। अब पैदल दो अल्फाज का मुरक्कब है, पाए और दल। एक राजकुमार का बंदा होना है, आपके पैर पैदल चलने वाले में से क्या आप अपने पैर धोते नहीं? और उन्होंने देखे कैसी आपके पैर बड़े मोटे हैं। कोई चीज ऐसी है जी मेरी नहीं देख के कोई गल होती। ये असल में तुम्हारे साथ इस कदर मोहब्बत करता है, इसका ध्यान जाता ही तुम्हारी तरफ है। ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਲ हाँ जी, और मेरा ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ। इसलिए कि तुम मेरे से मोहब्बत करते नहीं मैं नहीं करता। हो। तुम झूठे भी हो ना, झूठ बोलते हो। तुम झूठे भी हो और मोटे भी। अच्छा जी, ये है पायदल। पैदल ये संस्कृत में मतलब पाए का मतलब पैर और दल कहते हैं सफर को, जो पांव पे सफर करे। वाह। जैसे पीएन नहीं अंग्रेजी में कहते जी। पीएन को कहते हैं ही इज ऑन हिज टू लेग्स। वो किसी सवारी पे नहीं है, वो पैदल है बेचारा। वाह। रनर, ये पहले रनर हुआ करता था। रनर, रनर की पोस्ट थी। अब रनर जो है वो राइडर है। अब इस जमाने में रनर कहां होता है, लेकिन अब भी जो दफातर में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भाग दौड़ करते हैं दफ्तरी, वो रनर कहलाते हैं। वो पैदल भी कहलाते हैं। पैदल ना कहो यार, पैदल है। अब नहीं सर तुसी सानू यही सिखाया पैदल। नहीं, मैं दो अल्फाज को जोड़ रहा था, पाए दल। बंदा अपने दोस्तों के यार आपको कन्वेंस नहीं, आप पैदल आए हैं। और पीएन की एटिमोलॉजी भी बड़ी दिलचस्प है। लैटिन में ये पैड ऑन है। पैड ऑन, पैड मींस पैर, यानी ऑन यानी जो पैरों पर हो। ये लैटिन वर्ड है, पीएन वहां से आया। आड़ू के दोस्त कभी पैदल नहीं आते। क्यों, वो क्यों नहीं पैदल आते? वो आड़ू पे बैठ के आते हैं यार, और आड़ू हमेशा पैदल आया। सर आज का शेर कोई शेर आज भी कोई पुराना शेर ही होगा। पिछले ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਰ को चुक के ले गया है। मैंने गुजारिश की थी एक दिन कि अच्छी मौसीकी, अच्छी शायरी वो हो चुकी है, इसलिए हम रिपीट करते हैं, पुराने गाने सुनाते हैं। आज आपने भी पुराना गाना ही सुनाना जनाब। अपना जब भी पल्ले से सुनाने लगेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। ये बहुत बड़े कंपोजर्स थे, ये बहुत बड़े शायर थे जो हो गुजरे हैं, अपने हिस्से का काम कर गए। तो इसलिए हमें पुरानी शायरी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। इरशाद सर। शेर बड़ा जरबुल मसल शेर है, लेकिन तस्हीह भी हो जाएगी क्योंकि अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। शुएब बिन अजीज का शेर है, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। मतलब है बड़ा खूबसूरत। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वेलकम बैक। ख़ुदीन हज़रात, आज लम्हा फिक्रिया में हम दो अहम इदारों का तज़किरा करेंगे। एक है HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन और दूसरा नैब। HEC के हवाले से गुजारिश यह है कि बहुत ज्यादा तादाद में शिकायत हम तक पहुंचती हैं कि यहां का अमला निहायत रौनत का मुजाहरा करता है, बाकायदा बदतमीजी करता है अगर वहां जाया जाए या फोन पर राब्ता करने की कोशिश की जाए। आज से चंद दिन पहले HEC ने एक बहुत बड़ा इश्तहार दिया अखबारात में
کہ جب بھی آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے لگے تو جعلی اور اصلی یونیورسٹی کا فرق معلوم کرنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں یہ یونیورسٹی رجسٹرڈ ہے یا نہیں، آپ اس نمبر پر فون کریں یا ہماری ویب سائٹ پر رابطہ کریں۔ اب جو نمبر انہوں نے دے رکھا ہے پی ٹی سی ایل کا، وہ کرنے پر 90% تو ان ریسپونڈڈ جاتا ہے، کوئی جواب ہی نہیں آتا وہاں سے۔ اور اگر کوئی قسمت کا مارا فون ملانے میں کامیاب ہو ہی جائے تو اس کا سارا مورال کافور ہو جاتا ہے اگلے بندے کی گفتگو سن کر، یعنی انتہائی بے اتنائی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے ہمیں کسی گہری نیند سے ڈسٹرب کر دیا ہے، آپ ہمارے آرام میں مخل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک گزارش کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کالز ریکارڈ کرنی چاہیے، جس طرح کال سینٹرز کی کالز ریکارڈ ہوتی ہیں، ملٹی نیشنلز کرتے ہیں، بینکس کرتے ہیں، تاکہ کسٹمر کو یقین ہو کہ میں بات کر رہا ہوں یہ ایک طرح کی پبلک کسٹمر ہے آپ کی، آپ کو اس پہ پے کیا جاتا ہے، آپ پبلک کے پیسوں پہ پل رہے ہیں میرے بھائی۔ اور یہ ریکارڈنگ متعلقہ افسر سنیں گے، اگر نہیں سنتے تو چیئرمین سنے گا، اور اگر چیئرمین بھی نہیں سنتا تو پھر پرائم منسٹر کو سننا چاہیے۔ ڈاکٹر مختار احمد ہے جو اس کے چیئرمین ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اس کو سیریسلی لیں۔ ایک تو فونز ایک سے زائد ہونے چاہیے، ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہونی چاہیے فونز کی، کیونکہ بہت بڑا ادارہ ہے ایچ ای سی، کوئی غریب اور فقراء ادارہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے لیے اسپیشل گرانٹ طلب کی جائے، اور اگر پھر بھی شکایت پرسسٹ کرتی ہے تو پھر ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ خود انوالو ہوں، اور وہ جس دن فارغ ہوں اپنے پاس ریکارڈنگ منگوا کے سنا کریں کہ کیا کچھ ہوتا ہے عوام کے ساتھ اور پڑھے لکھے سٹوڈنٹس کے ساتھ، کیونکہ پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر فارغ ہی رہتے ہیں۔ پھر ایک گزارش ہے نیب سے متعلق کہ عام پولیس کے پاس تھانے میں اگر پبلک کا کوئی کیس ہے تو وہ اسے پرسو کر سکتا ہے، اس سے فیڈ بیک لے سکتا ہے، اس کی پوزیشن معلوم کر سکتا ہے، جی میرا کیس اس وقت کہاں ہے، کتنی دیر ہے، کیا ریکوری ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ عام طور پر وہ کیسز جن میں کوئی مجرم پبلک کے خلاف ماسو کرائم کرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی رقمیں لے کر بھاگتا ہے اور الٹیمیٹلی کھربوں روپے کا سکیم سامنے آتا ہے، اس حوالے سے کلیمنٹس ہیں یہ بیچارے، ہاتھ میں کلیم لیے یہ نیب کے دفاتر کے چکر لگاتے ہیں، تفتیشی افسر تبدیل ہو جاتا ہے، پروسیکیوٹر نیا آ جاتا ہے، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ضرور کرنا چاہیے، ایک فوکل پرسن اس کام کے لیے مامور کر دیا جائے جو عوام کی رہنمائی کر سکے۔ This is the minimum we can do for our people۔ اس سلسلے میں مثال دی جاتی ہے بینکر سٹی کا ایک کیس ہے، یہ فتح جنگ اٹک اور راول پنڈی کے درمیان ایک علاقہ جو 2005 میں ایک پارٹی اربوں روپے لے کر بھاگ گئی۔ 2007 میں نیب نے متاثرین سے کہا بھی اپنے اپنے کلیمز جمع کرواؤ، وہ کلیمز جمع کروا کے آج تک بیچارے طواف ہی کرتے پائے جا رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ خواتین حضرات، جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نسبتاً انتہائی غیر معروف کمپوزر کی نہایت شاندار کمپوزیشن ہے، نام ہے ایم جاوید، اور فلم تھی ایک سونا ایک مٹی۔ میڈم نور جہاں اور مہدی حسن نے یہ گانا گایا، پیش کرنے جا رہی ہیں سائرہ طاہر، اور ساتھ دیں گے آغا ماجد۔ جی جناب۔ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਿਲ ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦਿਲ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਦੋਂ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਿਲ
खुशियां तो प्यारे सन तेरे गम लगने, खुशियां तो प्यारे सन तेरे गम लगने, तेरे गम लगने। अज पहली पहली बार साडे होए इकरार, अज पहली पहली बार साडे होए इकरार, बाजी जित लई प्यार ने हो प्यार ने, अज तुसी गए मिले। दा की जुना जेड़े बचदे ने प्यार तू, दा की जुना जेड़े बचदे ने प्यार तू। सोने आने मेरा सा सोने दिलदार तो, सोने आने मेरा सा सोने दिलदार तो, सोने दिलदार तो। नहीं ओ दिल नू बचाया नावे सजना दिलाया, नहीं ओ दिल नू बचाया नावे सजना दिलाया, बाजी जीत लई प्यार ने हो प्यार ने, अज तुसी गए मिले साडा हार गया दिल, अज तुसी गए मिले साडा हार गया दिल, बाजी जीत लई प्यार ने हो प्यार ने, अज तुसी गए मिले। Excellent. वेलकम बैक जी। खबर है कि न्यूयॉर्क में खातून मुसाफिर सिगरेट नोशी से मना करने पर इश्तियाल में आ गई, गन पॉइंट पर बस अगवा कर ली। सर ये क्या रौला है? रौला ये है कि खातून बेचारी पहले बहुत दुखी थी, उसे जॉब से निकाल दिया गया। ये खुद बस ड्राइवर हुआ करती थी। काश सादक तुम ही औरत होता था, आज बस चला रहे हो। अच्छा जी, इसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये बहुत डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में पैदल पे सिगरेट पी रही थी। ड्राइवर ने मना किया तो इसने बस अगवा कर ली। हाय तो सर फिर कितनी देर बाद बस छुड़ाई इन्होंने? 2-3 घंटे में बस छुड़वा ली और जब रिहाई होने लगी इसकी तो कहती है कि मैं आज के बाद कभी बस पे सफर नहीं करूंगी। बस तो उन्हें छाड़ दी सी, ड्राइवर ने उन्हें छाड़ रही। उसका एक फ्रेंड भी था साथ उसके, वो बड़ा ही बदतमीज था। उसने उसकी मदद की है ड्राइवर को मारने में। ए तुसी पर्सनल अटैक किया? यस। अच्छा इन्हें दोवां चो खातून कौन है सर? कि कुकरे पैन अखा च? ए मेरी फ्रेंड हैगी। मैं इन्हू बस समझदा रहा। तुम फ्रेंड हो इसके? हाँ जी मैं दा फ्रेंड है। यस। अच्छा जी, क्या हुआ क्या था? होना किसी जनाब गल ये हुई कि बड़े। एक मिनट ठहर, तो जब मैं थत्थी हूं मैं नहीं बता सकती। और इन्हें बस अगवा चला के नहीं की थी सर, चौक के की थी। गल पता की आफ्ताब ਇਹਦੇ ਜੇ ਸੜਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯਸ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। जिसने बदतमीजी की थी? किसने बदतमीजी की? जो पीछे बैठे ने ड्राइवर ते कंडक्टर। क्यों भाई तुमने बदतमीजी की थी? और सर जी सिगरेट पी जान रही है। ये न्यूयॉर्क का कंडक्टर है। मसला है कि नौकरी तो काट दिता उन्होंने। मैं जॉबलेस थी। वो मैंने बता दिया, सो रहे थे तो और कोई गल नहीं, सिगरेट पींदी है। अच्छा। हाँ जी, एक औरत जात है और इन्हू इस गलों कढ़िया ये कहती मैं औरत साथ दा। बस फिर इन्हें गुस्से से तो बहुत बैठी है ना। फड़ ले उस बाद फिर मैंने फड़िया, मैं लाई इन्हें फिर फैंटी। सब तो पहले इन्हें सारी सवारी ने कुटिया, फिर उन्होंने घर च गई, उन्होंने घर वाले ने कुटिया, फिर नाल दे मुल्क गई, उस मुल्क वाले ने कुटिया। दस उस बाद इन्हें चंगी तरह ड्राइवर ने रगड़ा, नाल मैं सी। यस। ये ड्राइवर है पीछे बेचारा है। और की मैं चाह दे भांडे लेना सर, इसने रूल की वायलेशन की है। लग यही रहा है वैसे कि वेटर है बेचारा। लड़ाई होनी नहीं सी, इन्हें जुगत की थी कि 20 मन की मुसम्मी होंदी है।
ਯੈਸ ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਟਨ ਦਾ ਪੇਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 31 ਕੀ ਹੂੰ। 31 टन की। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। सर पहली बदतमीजी मुहतरमा ने की है सिगरेट पीकर। तू क्या सिगरेट पीने को, देखिए या तो वहां लिख के लगाएं कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। तुम्हें नहीं पता कि कानून है, वहां तुम सिगरेट नहीं पी सकती, तुम कहां की, इसीलिए तो निकाला है उन्होंने। ਲੇਕਿन ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ सिगरेट ये पी रही थी ना, यस। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। अच्छा तो आपके मुल्क में कोई ऐसी नौकरी हो? हाँ, तुम चलो पिशावर से कराची ट्रक चलाओ। ਸਰ ਟਰੱਕ ਕਦੀ जरा जेन ते थोड़े जे जोर दे, को रूट मेरा चेंज कर। आंटी आपको सिगरेट छोड़ देने चाहिए। मैं आंटी किहनू किहा मैं? आप मैं तेरे दसी जानी ऐ सरोग जो मैं निकली खलारा पै जाना, मैं तेरे बहुत भनना ही, मैं तेरे दाते। उन्होंने बताया 31 उनकी उम्र है। 31 ही है। लगती वैसे 131 है। ਇਹ ਅਸਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੇ ਬੇਤਾਬ ਹੈਗਾ। अच्छा, ये कंडक्टर है जो तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है? ਇਹ ਹੋਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਯੈਸ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਸਲੈਂਸਰ ਚ ਵੜ ਗਿਆ। अच्छा, ये जो पीछे बैठा बेचारा मासूम सा ड्राइवर, इसे भी मारा तुमने? नहीं, इसको मैंने मारा नहीं, ये तो मैं 2 गाने देखे। ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ आप इसके फ्रेंड हैं अंकल? ये मेरे फियांसी है। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। और तू 4-5 साल के बच्चे का प्यार नहीं होता? ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਏਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, कभी जिंदगी में ऐसा ਕਿਉਂਕਿ नहीं ਮੈਨੂੰ हुआ। ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਖੀਆਂ ਸੇਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ जिस दिन मेरी इतना लड़ाई हो गई ना, समझो मैं तो बेवा हो गई। ਵੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। वैलेंटाइन डे पे मैंने इनको गिफ्ट किया था। ਕਿਆ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ। और रिंग नहीं जिरे कुश्ती हुंदी है। सर बाकी तमाम मुल्कों में ममानत है सिगरेट। वहां सिवाय चंद इंतहाई पसमानदा ममालिक के हर जगह पाबंदी है स्मोकिंग की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लेकिन पी रहे हैं सिगरेट, ड्राइवर्स पीते हैं, कंडक्टर्स पीते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर पब्लिक प्लेसेस पे मैंने देखा है स्मोकिंग हो रही होती है। तो सर ये किसका कसूर है? माशरे का। माशरा कमजोर है, एपैथेटिक है, उसके अंदर जुर्रत ही नहीं है। जुर्रत इजहार बहुत बड़ी जुर्रत को कहते हैं। ज्यादा क्या होगा, एक अच्छी कॉज के लिए थप्पड़ नहीं खा सकते हो। ज्यादा क्या होगा, सिर पाटेगा ना उधर। क्या यार, सर फट जाएगा लेकिन कौम के लिए वो कुछ कर गुजरेगा। ये भी शहादत की किस्म है। नहीं देते ये शहादत, घबराते हैं, बस ख्वारी की जिल्लत बर्दाश्त करते रहेंगे। कभी ये नहीं। वो जिस बंदे ने कहा था फिक्स इट, क्या किया उन्होंने? अल्टीमेटली गिरफ्तार भी कर लिया उसको, फिर हीरो तो वो बन गया। तो ये फिक्स इट कहने के लिए जो आप में जुर्रत चाहिए, वो जब तक नहीं होगी माशरा नहीं तरक्की करेगा। वैसे आपको पता है एक मर्तबा बस नेल कटर के साथ अगवा कर ली गई थी। बाजू नाखून काट के बस छाटती थी। अमेरिकी रियासत है, सदर्न रियासत आर्कनसा। आर्कनसा में एक बंदे ने छोटे से चाकू के साथ बस अगवा कर ली थी। आर्कनसा की एक बड़ी मशहूर शख्सियत हमने चंद दिन पहले डिस्कस की थी, सदर बिल क्लिंटन। इस रियासत के सारे वारदाती ने सर। बिल क्लिंटन ने क्या वारदात की? तो ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से वारदात नहीं सी सर? बड़ी खूबसूरत वारदात की थी। सर मेरे असिस्टेंट ने पहले प्यार से समझाया इसको। किसको? ए जरा सामने नहीं प्यार सुनहरी पड़ोला। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ खबरदार खबरदार। मैं उठ गई ना तो मैं तेन कही जान डई है, मैं इतने हालात हो रहे। अच्छा, ये उठ सकती नहीं, मोटी बहुत। की ਹਾਏ ਕਿਆ असल तो देखना चाहना फिगर। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।